English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is atmosphere. ATMOSPHERE, atmosphere. हिंदी में हम इसे वातावरण कह सकते हैं. It is a noun word, ये संज्ञा है. The meaning of this word can be the blanket of air that surround the earth. यानी एयर का वो ब्लैंकेट जो कि अर्थ को सराउंड कर सकता है. So it can be also called the atmosphere around us. हमारे आसपास का वातावरण, हमें कुछ फील होना, अपनी सराउंडिंग्स फील होना. So इस सेंस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं. So now about using this word to frame sentence, I can say like that the atmosphere of office is very good. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class, children, we are doing our notebook work of chapter number 7, I love my home. So in today's class we will be doing one word answers, then make sentences and question answers. So let us open our notebook and start. So children, we are going to start with one word answers. So we have 4 one word answers. Here you can see on the board. On a new page you will write all the details like classwork, today's date. In the first line you will write number of the chapter, that is lesson number 7. In the second line you will write name of the chapter, that is I love my home. In the third line you will write heading or title one word answers. So we have 4 one word answers. From the 4th line you will start writing the first one word answer, that is at number 1 with each other, एक दूसरे के साथ. With each other means with means साथ, each मतलब एक दूसरे के, other हम इस तरह से बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ, that is called together, TOGETHER, together. So as we were discussing the chapter, we came to know that Varun and Arif played together every day. So एक दूसरे के साथ वो रोज खेलते थे. Next at number 2, not very often. Not means नहीं, very मतलब लगभग, often जिसे हम बोल सकते हैं प्राय, जो यूजुअली नहीं होता है, कभी कभी होता है, often नहीं होता है, तो हम उसे कह सकते हैं sometimes, कभी कभी. So not very often is called sometimes, कभी कभी जो यूजुअली या डेली नहीं होता है, that is called not very often or sometimes. So this is the answer, sometimes, कभी कभी. So we were discussing in the chapter that sometimes Arif and Varun used to sit on the rocking chair and read books. So कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो रॉकिंग चेयर पर बैठते थे आरिफ एंड वरुण और बुक्स रीड करते थे. So at number 3, feel sad about somebody. किसी के लिए उदास फील होना, किसी की याद आना, that is called missing. So Varun was missing his mother. So that is called miss. Feel sad about somebody, किसी के लिए उदास होना, किसी की कमी महसूस करना, that is called missing or miss. Next at number 4, use time or money for something. अपना टाइम स्पेंड करना या मनी स्पेंड करना. स्पेंड मतलब खर्च करना, बिताना. सो हम टाइम की सेंस में भी वी कैन यूज दिस वर्ड, यूज टाइम फॉर समथिंग और यूज मनी और टाइम फॉर समथिंग. हम अपने समय को हम बिताते हैं तो भी उसे हम स्पेंड करना कहते हैं. हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पर कुछ खर्च करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेंडिंग. सो यूज टाइम और मनी फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड स्पेंड. दिस इज द आंसर, SPEND, स्पेंड. सो दीज आर आंसर्स टुगेदर, समटाइम्स, मिस एंड स्पेंड. So next we will be doing make sentences of our lesson number 7, I love my home. So open a new page in your English reader notebook. In the first line you will write lesson 7. In the second line you will write name of the chapter, that is I love my home. In the third line you will write heading, that is make sentences. You have to write date and classwork as well. आपको date और classwork भी लिखना है new page पर. So we have 4 make sentences for this chapter. We are going to write this. At number 1, spend. Spend means खर्च करना है, ये verb है, क्रिया है. इसे हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, वर्ब, क्रिया. So spend मतलब खर्च करना, बिताना.
आई लाइक टू स्पेंड टाइम इन रीडिंग बुक्स। मैं पसंद करती हूँ अपना समय बिताना बुक्स पढ़ने में। सो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई लाइक टू स्पेंड मनी ऑन गेम्स, आई लाइक टू स्पेंड टाइम इन प्लेइंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो समय बिताना या कुछ खर्च करना, दैट इज कॉल्ड स्पेंडिंग। दो सेंस में हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं और उसे उसी अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। सो स्पेंड मतलब बिताना, यहाँ मैंने टाइम के अकॉर्डिंग लिखा है। आई लाइक टू स्पेंड टाइम इन रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट एट नंबर 2, टॉक। दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ टॉक। टॉक मतलब बातें करना और टॉक मतलब बातें की। सो पास्ट टेंस है टॉक का, बातें करने का, तो वो प्रीवियस टाइम में हो चुका है। सो आई टॉक टू माई कजिन येस्टरडे। कल मैंने अपनी कजिन से बात की। आई टॉक टू माई कजिन येस्टरडे। मैंने अपनी कजिन से बात की। सो यू कैन ऑल्सो राइट आई टॉक टू माई ग्रैंडफादर येस्टरडे, आई टॉक टू माई फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसी सेंस में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये है टॉक्ड। सो टॉक मीन्स बातें की। नेक्स्ट एट नंबर 3, टुगेदर। TOGETHER, टुगेदर मीन्स साथ साथ, एक साथ। दे यूज टू प्ले टुगेदर, वो एक साथ खेलते हैं। दे यूज टू प्ले टुगेदर, दे प्ले टुगेदर, ये भी राइट होगा। दे रीड टुगेदर, दे गो टू स्कूल टुगेदर, दे गो टू टेम्पल टुगेदर, किस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सो टुगेदर मीन्स एक दूसरे के साथ। दे यूज टू प्ले टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट एट नंबर 4, पैक्ड। दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ मेन वर्ब पैक। पैक है मेन वर्ब जिसका अर्थ है किसी चीज को इकट्ठा करना, असेंबल करना। ये पास्ट टेंस में है पैक्ड, PACKED, पैक्ड। सो आई टोल्ड यू दिस थिंग कि हम डी या ईडी ऐड करते हैं व्हाइल वी वर डूइंग, हम जो व्हाट हैपेंड बिफोर चैप्टर कर रहे थे ग्रामर में। देन आई टोल्ड यू दिस थिंग कि हम किसी वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ डी या ईडी ऐड करते हैं टू किस सेंस में करते हैं, जब हम उसे पास्ट टाइम में हुआ बताते हैं। सो पैक, वरुण पैक्ड हिज थिंग्स इन अ बैग। वरुण ने अपनी चीजें एक बैग में पैक की। सो ये पास्ट टेंस की बात है, वरुण ने अपनी चीजें एक बैग में पैक की। सो आई पैक्ड माई बैग फॉर स्कूल, इस तरह से लिख सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। So children, next we are doing question answers of lesson number 7, I love my home. So I want to tell you that we have 5 question answers total for this chapter. So open a new page, write all the details like classwork, today's date. In the first line you will write lesson number 7. In the second line you will write name of the chapter, that is I love my home. In the third line you will write heading. This is the short form of question answers. And from the fourth line you will start writing question number 1. Who was Varun? Varun कौन था? So you know very well Varun कौन था? Answer is Varun was a little boy. वरुण एक छोटा लड़का था। Who loved to play, जिसे खेलना बहुत पसंद था। बिल्कुल आप ही की तरह था वो, जिसे खेलना बहुत पसंद था। So but वरुण एक अच्छा काम भी करता था, वरुण बुक्स भी रीड करता था। सो वरुण और आरिफ क्या करते थे? दे यूज टू सिट ऑन रॉकिंग चेयर समटाइम्स एंड यूज टू रीड बुक्स। सो हु वाज वरुण? वरुण कौन था? वरुण वाज अ लिटिल बॉय हु लव्ड टू प्ले। वरुण एक छोटा लड़का था जिसे खेलना बहुत पसंद था। सो आफ्टर राइटिंग द आंसर यू विल लीव अ लाइन। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज हु वाज वरुण's फ्रेंड? वरुण का दोस्त कौन था? So there are total 3 characters in the story, Varun, Arif and Varun's mother. So Varun का friend कौन था? Arif. So you know very well कि who was Varun's friend? Answer is Arif was Varun's friend. Arif वरुण का दोस्त था। So ये सारी स्टोरी खेलने के शौक पर, जो उनका जो हैबिट था खेलना साथ में, they used to play together, उसके तरह है। So the next question is question number 3.
What did Varun talk about to his mother all the time? वरुण अपनी मम्मी से किस बारे में, किसके बारे में बातें करता रहता था? So you have read the chapter very well. हमने डिस्कस भी किया है वरुण किसकी बातें करता था. वरुण talked to his mother about Arif's house all the time. वरुण अपनी मम्मी से हमेशा आरिफ के घर के बारे में बातें करता था कि आरिफ का घर ऐसा था, आरिफ हैज सच लवली टॉयज, आरिफ्स मदर कुक टेस्टी फूड. सो वरुण हमेशा ऐसे ही बातें करता था अपनी मम्मी से आरिफ के बारे में. सो व्हाट डिड वरुण टॉक अबाउट टू हिज मदर ऑल द टाइम? अपनी मम्मी से वो किस बारे में बात करता था? आंसर इज वरुण टॉक टू हिज मदर अबाउट आरिफ्स हाउस ऑल द टाइम. वरुण अपनी मम्मी से हमेशा आरिफ के घर के बारे में बात करता था. So after writing this answer, we will leave a line. Then our question number 4. You will very happy to write this answer because it is just of one word. Did Varun take his toys to Arif's house? क्या वरुण अपने टॉयज को आरिफ के घर ले गया था? Do you remember? आपको याद है? The answer is no. नहीं ले गया था. So वरुण ने अपनी ज़रूरी चीज़ें पैक की और मम्मी ने भी हेल्प की और वरुण उन चीज़ों को पैक करके एक बैग में आरिफ के घर ले गया था. उसमें टॉयज नहीं थे तो वरुण का प्लान था जितना जी चाहे मैं खेलूंगा. सो डिड वरुण टेक हिज टॉयज टू आरिफ्स हाउस? क्या वो अपने टॉयज ले गया था? द आंसर इज नो. सो चिल्ड्रन, द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड वरुण नॉट हैव डिनर एट आरिफ्स हाउस? वरुण ने आरिफ के घर डिनर क्यों नहीं किया? What is called dinner? डिनर क्या होता है? रात का खाना, रात का जो मील होता है, that is called dinner. So वरुण गया था आरिफ के घर अपना सामान लेकर, वो खूब खेले भी, बट वरुण ने आरिफ के घर डिनर क्यों नहीं किया? So what was the reason behind that? इसके पीछे क्या रीजन था? आंसर, because he was not hungry. वरुण को भूख नहीं लग रही थी. क्यों नहीं लग रही थी? He was missing his mother. उसे अपनी मम्मी की और अपने घर की याद आ रही थी. सो बहुत जी भर कर वो खेले, बट वरुण को कुछ अनयूजुअल सा लग रहा था क्योंकि हर रोज़ तो वरुण आरिफ के घर जाता और मम्मी उसे बुलाते रह जाते कि आओ आओ जल्दी आओ, डिनर का टाइम हो गया है. बट जब आज उसे ये मौका मिला था, व्हेन ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि वरुण आरिफ के घर रह जाए, तो वरुण को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था. इतना खेल तो लिए बट डिनर करने का मन नहीं कर रहा था. हालांकि यूजली वरुण जब आरिफ के घर जाता तो आरिफ की मम्मी का जो कुकिंग था वो उसे बहुत अच्छा लगता था. बट दिस टाइम क्या हुआ? ही वॉज नॉट हंग्री. उसे भूख नहीं लगी थी. ही वॉज मिसिंग हिज मदर. उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी. सो इसलिए उसे भूख नहीं फील हो रही थी. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो द नोटबुक ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. वी हैव वन एक्सरसाइज पेंडिंग दैट वी हैव टू डू. We have skipped some exercise in book work. हमने book work में भी कुछ exercise skip की है, but we have one exercise remaining that I told you कि जब हम grammar में वो chapter करेंगे ly words related to adverbs, तब हम वो exercise करेंगे. So that's all for our English class today, children. We will be meeting in our next English class. I want to tell you that I have given you the reading test. Matter भी मैंने दे दिया है. आपका reading test है, so you all have to attend this test. So bye bye children, take care.